Today we are going to take types of plants, and when we talk about various types of plants or various levels of plants, plants are of various types. There are plants which range from a few hours to about a year, and that plant is called a short term plant. Then there are plants which range from 1 year to say 5 years or less than that also. They are called as mid-term plants. Normally they range up to 3 years. And then we have plants which range beyond 3 years, as we have the 5 year plants. They are the long-term plants. So these plants are being prepared by managers working at various levels. The managers who are working at the bottom level or at the lower level are mostly involved in day to day planning, as we commonly call short term plans, which involves the operational plans. So, frontline managers who are working at the bottom level or the lower level, who are in the supervisory capacities, so they are involved in preparing such types of plans. But then, when we come to the mid-term or long-term plans, they are the plans where the middle management or the top management of the organization is involved. Say, a long-term plan for any organization cannot be prepared by managers who are having a little experience, because that requires much of the conceptual skills which are present in the top management, because they have the capability to see the organization as a whole and to make plans for the organization which have broader implications. So that is why when we talk about various levels of plans, as we have plans which are at the operational level, day-to-day plans, then we have the plans like strategic plans, because strategic plans are designed to meet the broad objectives of the organization, to implement the mission that provides justification for the organization's existence. So that is why for strategic plans there is a need of more expertise on the part of management. They have to take into consideration that all which will enable them to prepare such types of plans. Okay, so that is actually we talk about strategic plans. Then we have the operational plans. Those are the plans that provide details as to how strategic plans will be accomplished, because the way strategic plans are to be accomplished, that all is mentioned very we can say very meticulously in the operational plans. So based on these, then there are also some plans which are contingency plans, because sometimes some situations arise which are not
we can say, which are not forecasted in the way that they will take place, but due to some unseen circumstances such situation arises, and for that also the management is well prepared with a plan that is called a contingency plan. So contingency plans are proactive in nature. Proactive, you understand what does proactive mean? Proactive. Proactive means, suppose there are two responses. One is reactive, another is proactive. Reactive means when something happens, some event takes place, and then how we react or respond to that situation. Proactive means we are imagining some situation will take place. That situation has not taken place, or that's not going to take place as such, but we still imagine if this thing happens, then what will be done at that time. So that is a proactive approach, or that is a contingency plan is based upon that, because sometimes some such thing happens. Let me quote the example of the present circumstance. Suppose in the year 2020, in the beginning, we have been facing this pandemic in the form of COVID-19. The entire world had faced this pandemic. But in the year 2019, it was not imagined that this pandemic will take place, because all the industries were operating, they were planning for their day-to-day business activities. In tourism, we can say tour operators were taking bookings for the package they were going to operate in 2020 in various countries of the world. Hotels were receiving bookings. Airlines had already booked their seats for the coming year to different destinations, and nobody as such was thinking that something like COVID-19 will take place and everything will come to a halt, everything will come to a standstill. Nobody was imagining this situation in 2019, that this will happen with 2020, that people will not be able to come out of their homes, tourism will stop almost to absolute zero. But there are some organizations who already predict such things. Not this COVID-19, but they predict if some situation will arise, whether due to epidemic, whether due to any sort of other natural disaster, that our business will stop. Then what to do in that situation? Because when these things actually happen, then to plan that time may not be feasible to that extent, because that time there is a worry, there is a mental sort of occupancy, people are mentally occupied what has happened. So in a serene environment, a person can think better, and when there is a lot of time also. So that is why there are some plans which are being made, which are being prepared well in advance of the actual disaster. So that is a contingency plan. And in contingency plans, there is already an alternative route of action that is studied, that what will we do if this situation will arise, and how we will manage that particular situation.
So that is an alternative course of action. You see, right now, I will give you an example of some of the big hotel chains in India, five-star properties. Now, because already when the tourism business had already come to a halt, and they are not receiving guests to their property, but at the same time they have employees whom they have to pay salary. So they need to at least generate some revenues by virtue of which they will be able to pay their employees. So some they started some offering some services which otherwise they used not to offer. In Delhi, I can give an example, recent example, because I was noticing it on the national newspaper as well. That a five-star hotel, had offered a laundry facility, a sanitized, hygienic laundry facility to the residents of the vicinity, where they are not charging any amount for delivery. Within a few kilometers, they are having a free delivery. That means they will pick up the laundry from the apartment, from the house of the person who wants to avail that service, and then they will be delivering it to their doorsteps back after washing the clothes, whatsoever it is. And in that process, they will be able to earn revenues for their property. So that is how, because they have already a housekeeping department, full-fledged housekeeping department. They have the proper housekeeping infrastructure for big washing cabinets which can wash, dry clothes. So they are offering this service to the people who are living in the adjacent areas, because right now what happens, people have, suppose, big kilts, big sort of carpets, or big sort of clothes which they need to wash, and even it's not possible for them to wash in their washing machines because of their bigger size. So in that way they are utilizing the services of laundry. But right now people are reluctant to use local laundries who used to be in their vicinities. So in that case, what they do, in that case they were reluctant because of this present situation. क्योंकि आजकल होता है ना कि सपोज अगर किसी बाहर वाले को कोई चीज़ दिया या वो आ गया तो उसके साथ इन्फेक्शन कैरी हो सकता है. तो लेकिन जो वो 5 स्टार प्रॉपर्टी है उसका ऑलरेडी एक ट्रस्ट है, नेम है कि उनके पास एक हाइजीनिक सिस्टम है. वो जो डिलीवरी वैन उनकी आएगी वो भी फुली सैनिटाइज्ड होगी, उसमें जो डिलीवरी बॉय होगा वो भी फुली सैनिटाइज्ड होगा, और वहाँ पे जो वॉशिंग हो जाएगी वो एक सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट में होगी जहाँ पे इन्फेक्शन का कोई ख़तरा नहीं है. तो ऐसे पोजीशन किया उन होटल ब्रांड्स ने अपनी सर्विस, ताकि वो इस वक्त इन हालात में रेवेन्यू जनरेट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. उसी तरीके से उन्होंने पैक्ड फूड डिलीवर करना शुरू किया. सपोज़ कोई अब उनको, क्योंकि वो चीज़ वो अभी तक नहीं करते थे, because they used to receive guests in their hotel and their restaurant and they used to serve them there. But now, as that scenario had stopped, they had chosen this alternative course of action, that now they are reaching to their clients, to their customers in their homes by serving them hygienic, sanitized food parcels. So this way they have created an alternative course of action. So these like of things are being kept in contingency plans. तो contingency plans में ये चीज़ें
डिस्कस की जाती हैं, रखी जाती हैं, ताकि अगर कभी ऐसा हुआ और हमारी प्रॉपर्टी को बिज़नेस लॉस हो गया इस वजह से और ये सिचुएशन आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की सर्वाइवल के लिए क्या करेंगे। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये कॉन्टिंजेंसी प्लान्स में आता है। तो ऐसे प्लान्स भी बनाए जाते हैं। तो फिर हम बात करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जिस्टेंस की वजह होती है, जिसे हम कहते हैं एक मिशन स्टेटमेंट, कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पर्पस के लिए एग्जिस्ट हो रही है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। सो उसके लिए जो मिशन स्टेटमेंट है दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्लान, कि हमारा मिशन ये है ऑर्गेनाइजेशन का। तो क्योंकि उसी मिशन और पर्पस पे फिर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ बनती हैं, क्योंकि पॉलिसी जो होती है दैट इज़ ए जनरल स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच गाइड्स द थिंकिंग एंड एक्शन इन डिसीजन मेकिंग। तो जो डिसीजन मेकिंग फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में होती है, तो जो उस डिसीजन मेकिंग को गाइड करती है कि कौन सा डिसीजन लेना है, तो उसके रिलेटेड पॉलिसी बनती है फिर, और वो पॉलिसी बनती है मिशन और ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के बेसिस पे। सो अब जो पॉलिसी है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग। तो पॉलिसी के बेसिस पे ही फिर उसके बाद बनते हैं रूल्स, कि अगर सपोज़ कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, उस पर पहले रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनती है। जो रिक्रूटमेंट प्लानर्स होते हैं दे फर्स्ट कम अप विद अ रिक्रूटमेंट पॉलिसी। तो उसके बाद फिर वो प्रोसीजर्स और रूल्स सेट करते हैं कि अब हम, क्योंकि पॉलिसी तो का फ्रेमवर्क बहुत बड़ा होता है, और पॉलिसी का जो वो फ्रेमवर्क है उसको सब डिवाइड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर्स। पॉलिसीज आर सब डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर्स, और प्रोसीजर्स को फिर बाज़ाबिता एक प्रोसीजर्स के बेसिस पे फिर रूल्स बनते हैं। चाहे रूल हो, प्रोसीजर हो, पॉलिसी हो, दे आर ऑल प्लान्स, बिकॉज अ रूल इज़ ऑल्सो अ प्लान, बट अ रूल इज़ a prescribed course of action that explicitly states what is to be done under a given set of circumstances. तो उसे कहते हैं रूल। क्योंकि रूल में, पॉलिसी में थोड़ा सा हमको फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन रूल बहुत रिजिड होता है, क्योंकि ये एक प्रेस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो हमको ये कहता है कि किसी गिवन सिचुएशन में, गिवन सर्कमस्टेंसेस में हमको क्या करना है। दैट इज़ अ रूल। तो ये बनता है, क्योंकि पॉलिसीज़ में थोड़ी सी, जैसे मैंने बोला, एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जिसे ऑपरेशनल फ्रीडम कहते हैं और डिस्क्रिशन कहते हैं, लेकिन रूल्स में वो डिस्क्रिशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रूल्स काफ़ी रिजिड रहते हैं। सपोज़ रूल है रिक्रूटमेंट के लिए कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है खाली वो जिसकी एज 37 से बिलो है, और उसमें पूरा डेट दिया होता है, इस डेट पे सपोज़ अगस्त 1, 2020, अगस्त 1, 2020 पे इसकी एज 37 एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ये 37 बिलो होना चाहिए, ये रूल है। तो इसमें आप अलाउ ही नहीं करेगा कोई फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन पॉलिसी में थोड़ी सी ब्रॉडर फ्रेमवर्क होता है, तो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश होती है। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज़ एंड प्लान्स। तो फिर उसके बाद जो हमने, जैसे पहले हमने डिस्कस किया, वो माइक्रो लेवल प्लानिंग, मैक्रो लेवल प्लानिंग। सो दैट इज़ on the basis of the magnitude of the plan that we are taking into consideration. फिर बजट होती है,
बजट भी एक किस्म का प्लान होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि जो बजट होता है ये एक प्लान होता है लेकिन इन मॉनिटरी टर्म्स, न्यूमेरिकल टर्म्स. So budget is simply a plan statement for a given period of time in future expressed in financial or numerical units. तो इसमें वो भी एक उसे फाइनेंशियल प्लान भी कहा जाता है. ओके, तो फिर हम बात करते हैं, जैसे इसमें आपका जो सिलेबस है इसमें इंटरनेशनल लेवल पे सार्क और एशियान का ज़िक्र है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन्वॉल्वड होती हैं प्लानिंग में. तो वैसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं सार्क. और सार्क जो है वो उसका जो वजूद है वो 1985 में हुआ. दैट वाज फाउंडेड इन ढाका. तो उसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन काठमांडू, नेपाल, जो उसका सेक्रेटेरिएट है. तो सार्क में 7 कंट्रीज़ थी जो इसमें साउथ एशियन कंट्रीज़, जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और मालदीव्स है, तो बांग्लादेश है. तो ये 7 कंट्रीज़ इकट्ठे जो साउथ एशिया में है, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक फोरम बनाएंगे, क्योंकि जो कुछ इश्यूज़ हैं उनके रिलेटेड, जैसे पानी का इशू है, मीटियोरोलॉजी का इशू है, हेल्थ है, तो कुछ इन्होंने इसके रिलेटेड, या टूरिज़म भी उसमें एक है, तो उसके रिलेटेड जो हम प्लान्स बनाएंगे तो उसके लिए हम एक फोरम बनाएंगे जिसमें हम इकट्ठे डिसीजंस लिया करेंगे. तो इसी बुनियाद पे सार्क का वजूद आ गया 1985 में. तो फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद एक और कंट्री इसके साथ जुड़ गई. हालांकि वो कंट्री पूरा साउथ एशिया में नहीं बिलोंग करती हैं, वो थोड़ा सेंट्रल एशिया में बिलोंग करती हैं. तो दैट इज़ अफ़गानिस्तान. तो इट वाज द ईयर 2005 when Afghanistan became member of the SARC. तो अब इस वक्त सार्क में 8 कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान को लेके. देयर आर 8 कंट्रीज़ इन सार्क. और ये इनकी समिट होती हैं. आपने कभी सुना भी होगा, टीवी पे न्यूज़ आती हैं तब जब ये कंट्रीज़ इकट्ठे मिलती हैं किसी जगह, क्योंकि इन्हीं 7 कंट्रीज़ में ये एक कंट्री को डिसाइड करते हैं वेन्यू. जैसे पिछली बार आई थिंक 2016 में सार्क की समिट थी, शायद 16 के लगता है, जब बाइकॉट हुआ था उसका, फिर वो कैंसिल हुई थी, क्योंकि तब उन्होंने डिसाइड किया था वेन्यू पाकिस्तान. उस वक्त वो कुछ मसला चल रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो फिर वो इंडिया ने बाइकॉट की थी वो समिट. फिर उसके बाद नेपाल ने की, क्योंकि नेपाल को उस वक्त इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होते थे. तो फिर और अफ़गानिस्तान ने भी शायद उस वक्त वो समिट फिर बाइकॉट की थी. 4 कंट्रीज़ ने बाइकॉट किया, तो फिर उस वक्त वो समिट ही कैंसिल हुई. सार्क समिट पहली बार वैसा हुआ था. तो ये जो एक्चुअली जब ये समिट होती है तो उस समिट में जो इन कंट्रीज़ के हेड्स होते हैं, क्योंकि हर किसी कंट्री का चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो इसका मेंबर रहता है. और फिर उस की समिट में वो पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर जो डिसीजंस लेने होते हैं इस साउथ एशियन रीजन के लिए, तो उसमें वो डिसीजंस भी लिए जाते हैं. जैसे एक बार
एक समिट हुई थी उनकी, दैट वाज इन द ईयर 1992 में हो गया ना वो लिबरलाइजेशन, जो ग्लोबल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड हैं। तो उसी साल इन्होंने भी फिर एक समिट की थी, तो उसमें इन्होंने वीज़ा एग्जम्पशन के बारे में पॉलिसी बनाई थी। दैट वाज अ वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम। तो उसमें ये डिसाइड किया था कि ये जो कंट्रीज़ हैं, क्योंकि तब तो अफ़गानिस्तान नहीं था मेंबर कंट्री ऑफ सार्क, तब 7 ही मुल्क थे ये, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने 2005 में ज्वाइन किया। तो तब थे ये 7 जो सार्क कंट्रीज़ थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ सिटीजन्स को, जो उन्होंने बाज़ाब्ता उसमें मेंशन किया उस पॉलिसी में, वो जो उन्होंने प्लान किया, दैट वाज एक्चुअली सम डिग्निटरीज लाइक, जैसे हाई कोर्ट के जज हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जर्नलिस्ट्स हैं, कुछ एथलीट्स हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और उनको फिर एक सेपरेट कैटेगरी में रखा जिनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती थी इन कंट्रीज़ को विज़िट करने के लिए। तो उनके लिए उन्होंने डिसाइड किया, चाहे वो पाकिस्तान से बिलोंग करता था, इंडिया से बिलोंग करता, भूटान से बिलोंग करता, नेपाल से करता, बांग्लादेश से करता, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इन कंट्रीज़ के इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं, वो अगर इन कंट्री में किसी भी कंट्री को विज़िट करना चाहेंगे तो उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको हम एक स्पेशल ट्रैवल परमिट देंगे जिसकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी। तो उससे उनको जो नॉर्मल रेगुलर वीज़ा रहता है वो ऑब्टेन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो दैट वाज अ डिसीजन, दैट वाज अ प्लान ऑन द बेसिस ऑफ विच सम पॉलिसीज़ वर फॉर्मुलेटेड फॉर सच पीपल। तो उसी तरीके से पानी के रिलेटेड इन्होंने कुछ प्लान्स बनाए, क्योंकि जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो साउथ एशिया में बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे आपने सुना होगा इंडस वाटर ट्रीटी एग्जिस्ट हो रही है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि ये पानी जो है इंडस का दोनों मुल्कों को फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं जो साउथ एशियन रीजन में फ़्लो करती हैं। तो उस पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, उसका मिसयूज़ कैसे रोकना है, उसके लिए ये 8 कंट्रीज़, क्योंकि अब अफ़गानिस्तान लेके ये 8 बन गई, पहले 7 थी, ये 8 कंट्रीज़ इकट्ठे बैठ के प्लान बनाते हैं। तो वो प्लान जो है वो जैसे मैंने बोला एक बहुत हाई लेवल का प्लान है, इंटरनेशनल लेवल का प्लान है, क्योंकि इसमें बैनुल अक़वामी सतह का इसलिए है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्वड हैं। तो नेचुरली इन कंट्रीज़ के हेड्स इस प्लान में हैं, जो इन कंट्रीज़ के जो टॉप जो चाहे प्राइम मिनिस्टर्स हो, प्रेसिडेंट्स हो, नेपाल का तो पहले किंग होता था उस वक्त वो, तो जो भी है हेड कंट्री का वो उसका मेंबर है, और वो मिलके डिसीजन ये प्लान बनाते हैं। तो ये प्लान एक लॉन्ग टर्म प्लान रहता है और उसको एक्सिक्यूट किया जाता है फिर इन सब कंट्रीज़ में, क्योंकि जो फिर ये हेड्स ऑफ दीज कंट्रीज़ दे got such plans executed in their countries, implemented in their countries by क्योंकि उसी के बेसिस पे, जैसे मैंने अभी बोला, फिर प्रोसीजर्स ले आउट करते हैं, फिर पॉलिसीज़ बनती हैं, फिर रूल सेट किए जाते हैं, ताकि वो जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क में उन्होंने प्लान्स बनाए हैं उनको ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये ऐसे काम ऐसे फोरम्स करते हैं जैसे सार्क हैं। तो सार्क जो है इसमें
बाज़ाबिता एक सेक्रेटरी जनरल होता है। फिर उसके बाद इसमें भी जैसे आप देखते हैं यूएनओ में, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का बाज़ाबिता एक अपना एक एजेंडा रहता है, और उसी तरीके से सार्क का भी साउथ एशिया के लिए रहता है एक बाज़ाबिता कि हमारा एजेंडा क्या है, किस पे हमारा फोकस रहना चाहिए। तो वो सारा ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश करते हैं। तो उसके बाद ये उसी के बेसिस पे जैसे ट्रेड है, तो इन्होंने साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया 2006 में लॉन्च किया कि साउथ एशिया में जो ये कंट्रीज़ हैं तो आपस में फ्री ट्रेड होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे डिसीजंस जो है, फिर इसी सार्क में एज ऑब्जर्वर्स यूरोपियन यूनियन भी आ गई, मतलब एज ऑब्जर्वर, क्योंकि इसको थोड़ा सा इस ऑर्गेनाइजेशन को और इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए, इसका होराइज़न बढ़ाने के लिए कुछ बाकी कंट्रीज़ को भी इसमें शामिल किया गया एज ऑब्जर्वर्स। तो उनको उनके साथ भी सपोज़ यूरोप में भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो उनका एक मॉडल है अपना कि हाउ दे ऑपरेट। जैसे फ्रांस इज़ अ सेपरेट कंट्री, जर्मनी इज़ अ सेपरेट कंट्री, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन इज़ अ सेपरेट कंट्री। तो उसमें फिर क्या होता है, उनको आपस में जैसे उन्होंने कॉमन करेंसी एक लॉन्च की यूरो, तो उन सब कंट्रीज़ में फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती है। अगर कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री से गए, सपोज जर्मनी भी उसी में आता है, फ्रांस जाएगा जर्मनी से कोई, तो वहाँ पे उसमें यूरो चलेगा, कॉमन करेंसी है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें ये फिर यहाँ पे सार्क में कोशिश करते थे कि अगर यहाँ पे ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो, लेकिन कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई, कुछ नहीं हो सकी, क्योंकि सार्क में कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जिसमें आपस में काफ़ी हॉस्टिलिटी रहती है। हॉस्टिलिटी मीन्स तनाव रहता है। जैसे सार्क में इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। तो अब आप देखो कि इन दो कंट्रीज़ को अक्सर आपस में हॉस्टिलिटी रहती है, तो इसलिए वैसी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई यहाँ पे, कॉमन करेंसी या ऐसी कुछ, या वहाँ पे उनको यहाँ पे इन्होंने कुछ कैटेगरीज़ को वो वीज़ा एग्जम्पशन कर सके। तो यूरोप में तो वो सबको अप्लाई होता है, सब सिटीजन्स को, वैसी चीज़ें। तो यहाँ पे वो नहीं हो सका बिकॉज ऑफ हॉस्टिलिटीज़। अब देखो आप इंडिया और नेपाल कितने आपस में वहाँ पे एज सच उनको वीज़ा प्रोसेस कितनी सिंप्लीफाइड होती थी, लेकिन अब कुछ वक्त से वहाँ पर भी थोड़ी हॉस्टिलिटी स्टार्ट हो गई। तो उस पॉलिसी को भी कंट्रीज़ को रिफ्रेम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है, ये एक्चुअली डिक्टेट करते हैं प्लान्स एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कि क्या करना है। कुछ इश्यूज़ के बारे में, जो इश्यूज़ कॉमन कंसिडर किए जाते हैं, which are of a common sort of which is having a common association, common relevance to these countries. So this is what role SAARC plays. तो SAARC है यही, that is South Asian Association for Regional Cooperation. तो ये इन्हीं कंट्रीज़ के बेसिस पे है ताकि इस खत्ते में वो आपस में एक कोऑपरेशन हो और वो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स उस कोऑपरेशन की वजह से अचीव कर सके। तो दैट इज़ हाउ such type of plans are being formulated at that level, right? So I think this is all what we will discuss for today, and inshallah tomorrow we'll be taking another in the coming session ASEAN, that is another organization which is also operating in this area. But so whatever we discussed today, have you been able to understand it?
Anything you would like to know further about it? It is open for discussion now.